नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में हुई भीषण टक्कर, एक युवक हुआ गंभीर घायल। नाभा में गेहूं के खेतों में लगी आग, 16 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। नशा तस्करी के हॉटस्पॉट गांव लखनपाल में नशा तस्करों के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, पिता और दोनों बेटों पर 13 केस दर्ज। और अब हलचल विस्तार से। मोगा जिला के चारिक गांव से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा होने की घटना सामने आई है, जहां एक युवक मजदूरी करने के बाद मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। मशीन की चपेट में आने से युवक का पैर कट गया। उन्हें समाज सेवा वाहन द्वारा मोगा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए फरीदकोट रेफर किया गया। हादसे की जानकारी देते हुए घायल की पत्नी कुलविंदर कौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वह तला गांव में काम करने गया था और गांव लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसकी दुर्घटना हो गई। उसकी हालत बेहद गंभीर है। समाज सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष गुरसेवक सिंह सन्यासी ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि चरिक रोड के पास एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। हमारे सदस्य एक वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मोटरसाइकिल सवार जो गंभीर रूप से घायल था और उसका एक पैर कट गया था, उसे मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे फरीदकोट रेफर किया गया। तो मेरा नाम कुलविंदर कौर है, मेरे घर ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੜੈਕ ਆ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਆ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਡਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੰਟਾ ਕੁ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੜੈਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਚੜੈਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੜੈਕ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਥਿਤੀ ਦੀ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ਟ? ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ पता, क्योंकि साढ़े मुंडे दा जाके चक के ले आया। खेतों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाभा के कैदूपुर गांव में एक ऐसी ही भीषण आग की घटना सामने आई, जिसमें गेहूं के डंठलों के 16 बंडल जलकर राख हो गई। आग इतनी विकराल थी कि एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज हेतु
नाभा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के अनुसार आग का कारण एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर बीड़ी पीने को बताया जा रहा है, जिसके चलते बीड़ी की चिंगारी से गेहूं के डंठलों में आग लग गई। आग फैलने से पहले ग्रामीणों ने और फायर ब्रिगेड ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इससे पहले काफी नुकसान हो चुका था। खेतों में खड़ी 16 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई और किसानों को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ। हाँ जी, आ कैदूपुर अग लग गई थी सौली वाली साइड साडे, पर ट्रैक्टर ने वो आ गई थी 5 ग्रेड भी ते अग ते काबू पा लिया गया, पर फिर भी 20-25-30 किले का नुकसान हो गया। चलो अगे बहुत किले 100-150-200 किला पिया सीगा, वो बच गया। कारणों का कोई पता नहीं, रोड लंघदा लिंक मैनू लगता कोई बीड़ी बूड़ी पी के ना कोई छिट गया होवे, कोई यही जी गलबात हुई होगी। असीं तां जद नूं आया काफ़ी फूकिया पिया सीगा उरे लाण। पिंड दे सहयोग दे नाल हाँ बिल्कुल सारा ही पिंड आ गया, सारे पिंड ट्रैक्टर बंदे सारे, पानी पंप भी सीगे पानी दे भरे वे, फायदा हो गया सारा। चलो एक बुझ गया, नुकसान हो गया काफी। हाँ झुलस गया, एक बंदा बुझाउण लग्या, वो बेचारा अजे नौदे दा गरीब बंदा, वो अग बुझाउण लग्या सीगा, किते लाट ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਲਸਤਾ। ਨਾਭੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੇੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਜੇ ਕਿੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਧੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਕਿੱਲੇ, ਟੋਟਲ 16 ਕਿੱਲੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਫਾਇਰ ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 11-12 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਧਰ ਬੀੜੀ ਬੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਝੁਲਸਿਆ ਯਾਰ? हाँ जी, बंदा एक खासा सेक लग गया एक नूं। जालंधर में गांव लखनपाल ड्रग्स का हॉटस्पॉट है। पुलिस ने गांव से 9 तस्करों को काबू किया है। वहीं गांव में एक ही परिवार के 3 लोग इस काले कारोबार में शामिल हैं। इनमें पिता और उसके दोनों बेटे हैं। इन पर कुल 13 मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले नशा तस्कर हरदीप सिंह उर्फ दीपा एक हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा नशा तस्करी के कुल 9 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उसका पिता और भाई भी नशे के काले कारोबार में शामिल है। उसके पिता सरबजीत सिंह और भाई संदीप उर्फ सोनू पर भी नशा तस्करी के 2 मामले दर्ज हैं। आरोपी हरदीप सिंह को पुलिस पहले ही काबू कर चुकी है। गौरतलब रहे कि इससे पहले इसी गांव के 9 नशा तस्करों को पुलिस ने काबू किया था। कई तस्कर घरों को बंद कर भाग गए थे। देश भर में पहलगाम हमले के बाद गम और गुस्से का माहौल है, जिसके तहत जालंधर में श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी पंजाब द्वारा शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने हेतु कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। तो वहीं ये कैंडल मार्च श्री गुरु रविदास चौक से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक तक निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर आप युवा सीनियर नेता रोबिन सांपला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो पर्यटक अपने सपनों को लेकर पहलगाम घूमने गए थे, उन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जो बेहद दुखद घटना है। ये केवल कुछ परिवारों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी एकजुट होकर शहीदों के परिजनों के साथ खड़े हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आप नेता काकू आलूवालिया, चंदन गरेवाल, समाज सेवक अक्षय बबलू, हर हर महादेव सोसाइटी के अक्षय, गौरव गौरा, नवीन, रिक्की, कुलविंदर हीरा, प्रदीप पिंदा, अभी भोलू, सुशील सोहोता, चेतन हांडा, सिमरन चड्डा,
विकास कल्याण, सौरभ, राजन, अरमान सोनी, गगन, दलजीत सिंह, अनुराग, तरुणप्रीत सिंह, नितिन, हिमांशु, साहिल, गगन, रिया भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पिछले दिनी ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਤਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 25-26 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2000 ਸਾਡੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੋਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿਲਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ 2000 ਸੈਲਾਨੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਹਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ परमात्मा हौसला दे, भाना मन का बल बख्शे। JCI इंडिया जोन 1 के तहत आयोजित 3 दिवसीय क्राफ्ट 2025 कार्यक्रम का भव्य समापन होटल प्रेसिडेंट न्यू कोर्ट्स जालंधर में किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी JCI जालंधर ने की, जिसमें पंजाब और हरियाणा की टीमों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जोन अध्यक्ष JC विवेक महाजन ने भाग लिया। इस अवसर पर कई राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने युवा प्रतिभागियों को प्रेरित किया और उन्हें नई दिशा प्रदान की। प्रमुख वक्ताओं में JC मनप्रीत कौर ओबराय, नेशनल ट्रेनर JFS रितेश, नेशनल ट्रेनर एवं IPZP को कोच JCI सीन मेघना शेखावत, नेशनल ट्रेनर एवं IPZP हेड कोच और JFA अभिषेक शर्मा, ZD ट्रेनर एवं चेयरमैन ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष मनविंदर सिंह और हरमनदीप सिंह प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने की। संचालन JFS शारू जैन ने किया। क्राफ्ट 2025 के इस आयोजन ने युवा नेताओं को प्रेरित किया और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए नई दिशा दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ मौका दिया आपके सामने आने का, आप लोगों से मिलने का। मैं जब भी ये इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है, मैं सच में जुड़ नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता कि ये मेरे बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि मैं इतना काबिल या लायक नहीं था और ना हूँ। लेकिन
समय जो है वो समय आपको बिल्ड करता है, समय आपको बनाता है। जैसे मैं यहाँ एंटर हुआ तो मैम शेखावत जो हेड कोच है जो बोल रहे थे, जिन्होंने शायद आपको आज वो टूल्स दिए हैं, वो कला दी है कि जिससे आप दुनिया की हर जंग जीत सकते हैं। वो बोलते हैं ऐसे जैसे मतलब फूल गिर रहे हों, मुझे ऐसा लग रहा था उनको देखते हुए। तो ये सबसे बड़े टूल हैं। आपको एक क्राफ्ट करने का जो तरीका बताया गया है, लेकिन टूल हमारे पास है, इसे क्राफ्ट क्या करना है। हमने पहली बात तो ये है कि सत्य को क्राफ्ट करना है। कभी भी अपने जीवन में ऐसा कुछ क्राफ्ट ना करें कि आपको लगे कि मैंने ये क्या किया। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में नशे से निपटने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत सांझ केंद्र जंडियाला गुरु ने श्री हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मल्लिया में नशे पर सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर पलविंदर पाल सिंह, इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और सांझ केंद्र इंचार्ज रंजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों और डीआईजी अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनजिंदर सिंह के आदेशों के अनुसार बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए श्री हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मल्लिया में नशे पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में छात्रों को बताया गया कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग घरों को नष्ट कर रहा है। आजकल के युवा बुरी संगत में फंसकर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। इससे न केवल उनका जीवन बर्बाद होता है बल्कि परिवार की संपत्ति भी बर्बाद होती है। अंत में नशे के आदि व्यक्ति की जीवन अवधि भी कम हो जाती है और वह अपने परिवार पर सारा बोझ छोड़कर दुनिया से चला जाता है। इसके साथ ही ये बताया गया कि नशे को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने भी नशे के खिलाफ जंग अभियान चलाया हुआ है, इसलिए हम सभी को पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जो श्री भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब दी हदायतों अनुसार सरदार मनजिंदर सिंह जी IPS SSP अमृतसर बुडर की रहनमाई हेठ श्री हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मल्लिया सानू सैमीनार लाने का मौका मिला, जिथे बच्चों ड्रग बारे अवेयरनैस किया गया कि ड्रग के होने वाली उनताइयाँ ते उन्हां दे समाजिक रूल जो भी उन्होंने घाट पैंदी है या नुकसान होंगे ने या घरेलू नुकसान समाजिक नुकसान बारे बच्चों विस्तार सहित दस्या गया ताकि बच्चे इस भविख में इसकी वरतों ना करन अते इस तो वध अपने नाल दे सहयोगी बच्चों ते होर बच्चों इस ड्रग के पिछों दूर रहने दे सहयोग करन। सरकारां की कर रही हैं नशे बंद करने वास्ते? सरकार वध तो वध कर रही है कि बच्चा जदों भी कोई बच्चा या कोई फैमिली मैंबर जिहड़ा नशियां दे विच लग्या है तो उन्होंने मतलब कि मैडिकल सहूलतां देण लई सांझ स्टाफ अते होर आम समाजिक पब्लिक लोगों की सहायता के नाल उन्होंने किसी हस्पताल में दाखिल कराउण दी ताकि वो नशे नूं छड्ड सकन। कोई नंबर भी जारी किए गए सरकार वालों भी? इस नंबर हाँ साडे अमृतसर देहाती वालों मानयोग SSP वालों 97803387 कंट्रोल रूम का नंबर है। जे कोई भी इदां दा नशा करता है तो उहदे संबंध में तुसीं उत्थे जानकारी दे सकते हो ते तुहाडा पुलिस वध तों वध सहयोग करेगी। अज श्री हरगोबिंद साहब पब्लिक स्कूल मल्लिया विखे जो सैमीनार प्रिंसीपल साहब ने लवाया, ये समय समय सिर सैमीनार लगवाते रहते हैं कि बच्चों को अवेयर हो सकन, समय समय सिर गेमां कराते हैं कि बच्चों की सेहत और पढ़ाई में बच्चे का मन लग सके। अज जो नशों के संबंध में सरकार वालों भी हिदायत साढ़े मानयोग SSP अमृतसर देहाती वालों भी खास हिदायत की गई है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के कॉलेजों में जाके बच्चों को अवेयर करो कि वो नशों तो अपना बचाव कर सकन। असी बच्चों को खास करके रिक्वेस्ट भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं कि आपो अपना नशों तो किवें बचाव किया जा सकता। ये सेहत लई बहुत हानिकारक ने, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे ने, अपना भी पैसे का भी नुकसान तो सेहत का भी नुकसान, ये बहुत ज़्यादा नुकसान ने। इस तो नशों से दूर रहने लई सानूं प्रेरित किया गया है। अज 2-3 दिन पहलों एक जो श्रीनगर में घटना हुई है, ये बहुत मंदभागी घटना है। ये उत्ते भी आप एक पंजाब पुलिस मेरे नाल सांझ स्टाफ दुख
ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੱਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਭਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ सरकार का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के 270वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य और श्रद्धापूर्ण आयोजन किया गया, जिसका आयोजन दुआबा होम्योपैथिक स्टडी सर्कल जालंधर द्वारा होटल प्रेसिडेंट सिविल लाइंस में किया गया, जहां पंजाब भर से आए हुए होम्योपैथिक विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद सिंगला, प्रिंसिपल लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर विशेष अतिथि डॉक्टर नीतीश दुबे, CMD ब्रनेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर रविंदर कौछड़, डॉक्टर हरप्रीत सिंह, डॉक्टर चरणजीत लाल, डॉक्टर शक्ति महेंद्रो और डॉक्टर सुभाष चंद्र निस्तंद्र ने भी डॉक्टर हैनीमन को श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं समारोह में वक्ताओं ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास, इसके वर्तमान दौर में बढ़ते महत्व और नई दवाओं की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर निर्मल सिंह को हैनीमनियन अवार्ड और डॉक्टर रविंदर कोछड़ को वेटरन होम्योपैथ अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब रहे कि दुआबा होम्योपैथिक स्टडी सर्कल जालंधर द्वारा पिछले 31 वर्षों से लगातार डॉक्टर हैनीमन की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में पंजाब के विभिन्न जिलों से आए करीब 125 डॉक्टरों ने भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बनाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम जैसे सेनेटर डॉक्टर मेघना शेखावत है। स्पीच क्राफ्ट JCI इंडिया का एक प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो बेसिक लेवल पे होता है। अगर आप ट्रेनर बनने की इच्छा रखते हैं या स्पीकर बनने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ से आप वो गुण सीख सकते हैं, यहाँ से वो कला सीख सकते हैं जो जिससे आप अपनी स्पीच को, यानी कि आप स्टेज पे जब भी माइक दिया जाता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है कि मैं स्टेज पे जाके कैसे बोलूँ। लेकिन अगर आप स्पीच क्राफ्ट जैसे प्रोग्राम्स करते हैं तो ये गुण आप में आ जाता है। जो स्टेज फियर होता है, फियर फैक्टर हमारा हट जाता है, हम कॉन्फिडेंटली जाके स्टेज पे बात कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है जहाँ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्रूमिंग कर सकते हैं अपनी। JCI का क्या मोटिव क्या है? JCI का मोटिव है लीडरशिप डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि समाज में एक ऐसे लीडर्स बनाए जो जिनमें ऐसी काबिलियत हो कि वो बिज़नेस में भी बहुत अच्छा कर पाएँ, सोशल लीडर्स भी अच्छे बने। अगर हम पॉलिटिक्स में भी देखें तो हमारे JCI से बहुत सारे ऐसे लीडर्स निकले हैं जो पॉलिटिक्स में कहीं पे चीफ मिनिस्टर हैं, कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे दायित्व होते हैं जो हम अपनी अलग अलग पोस्ट पे निभाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे बताया। इसके अलावा PR प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, यानी कि शहर में या आप अपने स्टेट पे बहुत बड़े प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फंड रेजिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। हम रूट लेवल पे जाके भी काम करते हैं जहाँ पे हमारी नीड होती है, नीड एनालिसिस करके हम काम करते हैं। तो JCI हर सेक्टर में काम करता है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक की भी हम अप्रोच करते हैं जहाँ पे जिस तरह का काम है। JCI इंडिया को लास्ट ईयर 75 साल हो गए हैं, यानी कि डायमंड हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी इसकी, तो ये 76th ईयर है JCI का। कॉज क्या था शुरू करने का? कॉज शुरू में ये था कि एक सोशल गैदरिंग होनी चाहिए, यानी कि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं अलग अलग एरियाज़ में, लेकिन एक दूसरे से मिला कैसे जाए। जब तक हम थॉट्स एक्सचेंज नहीं कर सकते, अपनी ग्रूमिंग नहीं कर सकते। तो JCI इंडिया, वैसे JCI शुरू हुआ था USA से और फाइनली अब इंडिया में इसको
76 ईयर्स हो गए और यहाँ पे जैसे मैंने बताया बिज़नेस प्रोग्राम, बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं और यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे फेलोशिप बहुत अच्छी होती है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਹਨੀਮਨ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਦਾ 270ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਕਰੋਨਿਕ ਔਰ ਅਕਿਊਟ ਤੋਂ ਅਕਿਊਟ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 55% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ होने और ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ बीमारी भी ठीक हो रही है। जालंधर के एक होटल में नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर SP डालिया की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित वर्मा और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अंकुर शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धनवंतरी पूजन से हुई, जिसके बाद नीमा के सचिव डॉक्टर राजीव धवन ने सभी सदस्यों और अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद नीमा ने अकाल मृत्यु का शिकार हुए सदस्यों और हाल ही में पहलगाम में हुई निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्याओं के विरोध में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं संगोष्ठी में डॉक्टर अमित वर्मा ने मूत्राशय संबंधी विकारों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने दवाओं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति और सर्जरी के माध्यम से इसके प्रभावी उपचार के विषय में जानकारी दी। दोनों विशेषज्ञों ने नीमा सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी ही गंभीरता से दिए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर राजीव धवन ने बड़े ही सुंदर और कुशल ढंग से किया। इस अवसर पर डॉक्टर KS राणा, डॉक्टर परविंदर बजाज, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर भरत बाबा, डॉक्टर सुरेंद्र कल्याण, डॉक्टर विपुल कक्कड़, डॉक्टर भजन खेपड़ा, डॉक्टर गुरपाल चौहान, डॉक्टर रतन शर्मा, डॉक्टर परवीन गुगलानी सहित अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने नंबर पे ऑलमोस्ट फुल है। इतनी बड़ी पहली बात है तो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा ये लगता है कि इसमें कम से कम 1 दर्जन तो डॉक्टर ऐसे हैं या उससे भी शायद ज़्यादा हो जिन्होंने गुलाब देवी की प्रोग्रेस में योगदान दिया है। और मैं सच्ची बताऊँ कि इन सब की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही। एक ज़माना था जब यहाँ पर ये चीज़ चलती थी कि सिर्फ MBBS डॉक्टर अच्छे, तो मैंने सबसे पहला स्टार्ट लिया कि मैंने GNS डॉक्टर दयाल अरोड़ा और अश्विनी महेंद्र को रखा। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ पर आई पुट माई फुट डाउन और ये दोनों दिन रात ड्यूटी करते थे और 70-80 पेशेंट को ये दोनों ही मैनेज करते थे। सब तो पहले डॉक्टर डालिया जी का बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने मैंने इस काबिल समझा भी मैंने चेयरमैन लगाया इस कमेटी का जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने मैंने एक हीरा भी दिता डॉक्टर विपुल कक्कड़ जो रजिस्ट्रेशन कमेटी के चेयरमैन है। इन्होंने रल के असीं कोशिश करांगे अप टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस वी विल डू आवर लेवल बेस्ट। क्रेडिट पॉइंट एक बड़े मैंने फोन आते हैं बड़ा एक अजकल हॉट चर्चा का मतलब पॉइंट है कि क्रेडिट पॉइंट्स की है किवें मिलने हैं। अज भी मैंने सवेर के 8-10 फोन आए कि अज की जी मीटिंग ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स के अंडर है कि विदाउट क्रेडिट पॉइंट्स है।
ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਔਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਯੂ ਨੀਡ ਓਨਲੀ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। मैं कई बार मैसेज पा चुका हूँ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लोकल ब्रांच की ओर से होटल बेस्ट वेस्टर्न प्लस जालंधर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अंकुर किड्स अस्पताल के सहयोग से किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता ब्रांच प्रेसिडेंट डॉक्टर MS भूटानी ने की। संगोष्ठी की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए बेकसूर पर्यटकों की आत्मिक शांति हेतु मोमबत्तियां जलाकर और 2 मिनट का मौन धारण कर की गई। इस अवसर पर अंकुर किड्स अस्पताल के MD और वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर गुरदेव चौधरी, डॉक्टर दीक्षा चौधरी और डॉक्टर गोमती महाजन ने बतौर गेस्ट स्पीकर डॉक्टरों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की। डॉक्टर गुरदेव चौधरी ने नवजात शिशुओं की देखभाल संबंधी चर्चा की, तो वहीं वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षा चौधरी ने कंप्लीट ब्लड काउंट के नए मापदंडों पर भी प्रकाश डाला। वहीं संगोष्ठी के दौरान वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विजयपाल सिंह सिद्धू, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर PS अनीजा और डॉक्टर JS डांग को मेडिकल प्रोफेशन में उनके अभूतपूर्व योगदान हेतु विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बठिंडा में हुए स्टेट लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली IMA जालंधर की टीम के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर निमेश ने किया था। वहीं कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर भूटानी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर MS भूटानी, भूटानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जालंधर, प्रेसिडेंट IMA जालंधर 2025। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ CME ਆਪਣੀ IMA ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋ ਬਰਥ ਵੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਹੈਲਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਾਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। बहुत अच्छा लगा। आज साड़ी CME बहुत ही सक्सेसफुल रही। अराउंड 150 के अराउंड डॉक्टर्स ने साड़ी CME अटेंड की और स्पीकर्स भी बहुत अच्छे सी, टॉपिक्स भी जिद्दां सर ने किया कि बहुत ही अच्छे किए गए। CME की स्टार्टिंग में सब तो पहला असी पहलगाम ਜਿਹੜੇ कि बहुत ही ड्रास्टिक ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਆਪਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, IMA ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ CME ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਲਾਲ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ PMC ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ ਦਈਆ ਐਂਡ PMC ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੂਟਾਨੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ CME ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਬਲੱਡ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ HIV HPSAG ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਲਈ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूरिन इन्फेक्शन डेवलप कर लेंगे। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि सारे हॉस्पिटल्स अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखन, क्लीनलीनेस का ध्यान रखन, एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे तरीके नाल यूज़ करन ताकि नोजोकोमियल इन्फेक्शनस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शनस जिहड़े ने उन्हां नूं कंट्रोल विच कीता जाना बहुत जरूरी है। इहदे नाल ही मैं सारे दे सारे डेलीगेट्स जिहड़े कि इत्थे उपस्थित थे उन्हां दा बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हाँ। डॉक्टर भुटानी सर का भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने विजनरी का थैंक यू कि उन्होंने बहुत ही नए टाइप के टॉपिक्स साडे CME लई चूज़ किए और तुहाडा सारियां दा भी बहुत बहुत भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र के तत्वावधान में धर्म वल्लभ युवक मंडल द्वारा न्यू जवाहर नगर मंदिर में दूसरे रक्तदान एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामंत्र नवकार के सामूहिक उच्चारण से हुआ। इसके बाद पहलगाम में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने हेतु 1 मिनट का मौन रखा गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुश्रावक चमन लाल जैन, दानवीर रमेश जैन, रानी जैन, सुधांशु जैन, कृति जैन एवं मैसर्ज जैन पारस ज्वेलर्स परिवार द्वारा रिबन काटकर एवं ज्योति प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मेयर विनीत धीर विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित हुए। सभी गणमान्य व्यक्तियों का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। धर्म वल्लभ युवक मंडल के प्रधान लोकेश जैन ने बताया कि इस शिविर में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगभग 50 युवक युवतियों ने रक्तदान किया। वहीं लगभग 145 रोगियों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 19 रोगियों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। शिविर में पिम्स अस्पताल और विजय वल्लभ चैरिटेबल अस्पताल की टीमों का योगदान सराहनीय रहा। रक्तदान करने वाले सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और लॉटल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जलपान की उत्तम व्यवस्था की गई। इस अवसर पर चमन लाल जैन, रमेश जैन, रानी जैन, सुधांशु जैन, कृति जैन, रविकांत जैन, महेंद्रपाल जैन, शीतल जैन, अंकुर जैन, सनत जैन, निपुण जैन, राजन जैन, राकेश जैन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र में जो ब्लड कैंप लगाया गया है उसका एक खास कारण है। हमारे देश में बहुत से बच्चे थैलासीमिया के शिकार हो रखे हैं और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत जल्दी ज़रूरत रहती है। जालंधर में हमारे पिम्स इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रही है कि उनकी निःशुल्क सेवा दे रही है, लेकिन क्योंकि उनसे हमने जब बात की तो ब्लड की कमी रहती है, तो आज का ये जो ब्लड कैंप है उन बच्चों को, थैलासीमिया के बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है। अब तक करीब 60 के करीब डोनर डोनेट कर चुके हैं और अभी भी काफ़ी सारे डोनर लाइन में लगे हैं जिन्होंने आज अपना इस कॉज के लिए ब्लड डोनेट करना है। इसके साथ साथ आज हमने नीचे नेत्र चिकित्सा का और मोतियाबिंद ऑपरेशन का भी आज उनका भी कैंप चल रहा है। उसमें भी करीब 70 के करीब पेशेंट जो आज हैं कैटरेक्ट सर्जरी के लिए अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं और साथ साथ दमे के, अस्थमा के, बीपी, शुगर के भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पिम्स की टीम यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रखे हैं जो अपने ट्रीटमेंट का यहाँ पे नीचे फ़ायदा ले रहे हैं और आने वाले समय भी हमारे यहाँ पर कम से कम साल में 2 ऐसे कैंप करने का आज बीड़ा उठाया है। ये सारे कार्य समाज के विभिन्न लोगों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा हमें प्रोत्साहित किया गया है और ख़ास करके आज का जो मेन मकसद था कि हमारी युवा पीढ़ी जो कि आज मोबाइलों और गैजेट्स के ऊपर जुड़ी है, उनके अंदर विशेष करके सामाजिक कार्य और ख़ास करके कम्युनिटी सर्विस को जगाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे स्कूलों की किताबें फेल हो चुकी हैं मॉरल वैल्यूज़ को लेकर। मॉरल वैल्यूज़ हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता है। सो आज कम से कम 14 से 15 ऐसे युवा और जो लड़कियां जो कि 12 से लेकर 16 साल तक की हैं, वे अपनी आज यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं। उन सबको भी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन यहाँ पे दिया जा रहा है। मैं अपने बीच पधारे हुए हमारे सभी मीडिया के, विशेष करके दैनिक सवेरा की टीम को, जो कि हमें हर समय ऐसे नेक कार्य करने में प्रोत्साहित करती है, मैं उनका भी खूब खूब धन्यवाद करता हूं और हमारे आदरणीय श्री शीतल जी वैद्य जी का भी, जो भी हमें हर कार्य में अपना यथा योग्य समर्थन और योगदान देते रहते हैं। धन्यवाद।
जालंधर के बस्ती पीरदाद स्थित ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के श्री गौरी शंकर मंदिर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। इस आध्यात्मिक आयोजन का संचालन पंडित राजकुमार तिवारी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस अवसर पर भागवताचार्य श्री देवकी नंदन दास जी ने कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार के महत्व को रेखांकित किया। भक्तगण एकाग्रचित होकर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहे। गौरतलब रहे कि कथा के अंतिम दिवस पर विशेष आयोजन होंगे, जिसमें हवन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यज्ञ की आहुतियों के साथ समस्त भक्त समाज के कल्याण की कामना की जाएगी। कथा के समापन अवसर पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री 1008 महाराज बंसीलाल भी उपस्थित रहे और युवा आप नेता अतुल भगत को मंदिर समिति की ओर से मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज ग्रीन एवेन्यू गौरी शंकर मंदिर वालों जो श्रीमद भागवत कथा कराई जा रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। हर साल की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से ग्रीन एवेन्यू वासी गौरी शंकर मंदिर वालों ने कथा कराई है। पंडित राजकुमार जी के नेतृत्व में, राजकुमार तिवारी जी के नेतृत्व में, और ये परम आवश्यक है सनातन धर्म के लिए। समय समय पर यथार्थ में लोगों का ज्ञान होता रहे। कथा से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, संस्कार भी बनते हैं और हमारी परंपरा भी है सनातन की। वो कथा यथार्थ में व्यक्ति को बोध कराता है, यही तो संस्कार है। सनातन में सभी की आस्था हो और सनातन के लिए ही व्यक्ति कार्य करे, ये परम धर्म अपने जीवन का समझाने के लिए ही कथा रखी जाती है। और पंडित जी ने जो कथा रखवाई, गौरी शंकर मंदिर के जितने भी सदस्य हैं, जिन लोगों ने तन मन धन से इस यज्ञ में भाग लिया है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। ऐसे कार्यक्रम और यज्ञ होते रहें तो लोगों को ज्ञान की भी प्राप्ति होती रहेगी और संस्कार भी लोगों को प्राप्त होंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा ठाकुर जी के चरणों में, पंडित जी ने जो यज्ञ कराया ये हर वर्ष की तरह ये आगे निरंतर आगे भी चलता रहे और जिन लोगों ने तन मन धन से इस यज्ञ में सहयोग दिया है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आए हुए इस जग के जो 7 दिवसीय जग चल रहा था, इस जग में आए हुए सभी हमारे मुख्य मेहमान संत संप्रदाय आचार्य बंसीदास जी महाराज गुरु भाई, इनका भी बहुत इस हर साल जो हम कथा करते हैं सराहनीय योगदान होता है और आगे भी बढ़ने की प्रेरणा हमेशा देते रहते हैं कि तुम आगे बढ़ते रहो, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ज्ञान की बात सुनाते रहो और सुनवाते भी। आज मैं इनका भी बहुत, इनके माध्यम से मुझे भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि समाज में रहकर समाज को सुधार करते रहो। धर्म के माध्यम से सुधार होता रहेगा, क्योंकि भविष्य ही आज के जो भविष्य, कल का भविष्य सुधार होने से मंगलमय कामना होती रहेगी, परिवार हमेशा सदैव बना रहेगा, धर्म की आस्था बनी रहेगी। संत संप्रदाय के यही सराहनीय कार्य होता है। उस कार्य में मैं अपने को तुच्छ समझता हूँ कि मैं भी एक इस काम में योगदान करने का एक श्रेय लेता हूँ इन लोगों के माध्यम से। और मैं राजनीति के माध्यम से कहूँगा, हमारे मुख्य रूप से मेहमान श्री महेंद्र भगत जी हमेशा आते रहे हैं, उनका सहयोग होता भी रहा है, मैं भी जाते रहे, बहुत प्रेम से हमारा भी सम्मान करते हैं, इस मंदिर का भी सम्मान करते हैं और इस मोहल्ले में भी उनका सदियों से जो
इतने काम किए हैं जो पहले आज कुछ वर्षों नहीं हुआ था। भले दुनिया भूल जाए, मैं जब से आया हूँ 2009 से देखा हूँ कि कच्ची सड़कें होती थी, लेकिन उन्हीं की बदौलत है आज पक्की सड़कें हुई। लेकिन लोगों ने वादा की खिलाफी की है उनके साथ, लेकिन पुनः जाकर फिर अपने रास्ते पाए। मैं भी उनको बहुत बहुत अपने तरफ से और अपने इस मंदिर के परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि भगत जी बड़े भाई के रूप में है, अपने काम में बढ़ते रहे, उनका परिवार बढ़ता रहे और जन की सेवा करते रहे। ऐसे कामों में शरीक होकर भी हमें भी खुशी होती है कि अभी कोई है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। राधे राधे, राधे कृष्णा। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उमेश शर्मा और मोनिका शर्मा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित हंसराज मिश्रा ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने भक्तिमय भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आई हुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, अनुराग आर्य, ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, अनिल भसीन, कंचन भसीन, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नल्ली उपाध्याय, बैजनाथ, वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की क्योंकि लिस्ट में एक नाम था, लेकिन किसी कारण बाहर जाना पड़ा उसको। मैं भारती से बात कर रहा था, मेरे दिमाग में आपका तो आगे आया बैठो। मैंने कहा कि एक दिन के 2 मैच छोड़ के थोड़ा उसमें परिवार था, वो भी 10 साल की बहुत मौका मिलेगा मेरे को क्या किया। ये मेरा नंबर है, लेकिन मैं जाना नहीं, लेकिन इनकी दृष्टि आगे ऊपर पड़ती। तो लेकिन जब आपको तुरंत कहा करती तो इसलिए परम पिता परमात्मा जिसको इसको सेवा बनाना है, इसलिए ईश्वर का बहुत धन्यवाद है। आपने शुभ कार्य किया है, तो आगे आपका बहुत धन्यवाद। जय मां सेवक सभा रसीला नगर बस्ती दानिशमंदा जालंधर की तरफ से 21वां वार्षिक जागरण बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाया गया। इस अवसर पर मां के दरबार को रंग बिरंगी लाइटों और सुंदर फूलों से सुसज्जित किया गया। सर्वप्रथम सभा के सदस्यों की ओर से विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण सहित मां की पावन ज्योति को प्रज्वलित किया गया, जिसके बाद जागरण में प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने मां की मनमोहक भेंटों और भजनों का गुणगान कर भक्तों में भक्ति रस की धारा को प्रवाहित किया। तो वहीं नन्ही कन्याओं ने मां के विभिन्न स्वरूपों में सजकर सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने पहुंचकर मां के समक्ष नतमस्तक होकर हाजिरी लगाई, जिन्हें सभा की ओर से मां की चुनरी एवं समृद्धि चिन्ह भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस जागरण में अध्यक्ष राजीव खिंदर, कैशियर भजन लाल, सदस्य विकास खिंदर, विशाल खिंदर, अनुराग खिंदर, रजनीश खिंदर, मुनीश मल्होत्रा, आशीष लखोत्रा, योगेश दहिया, प्रदीप दहिया, दीपक कौंडल, कृष्ण वनीत कौंडल, सुभाष चंद्र सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। सरस्वती स्वर दीजिए, मोहेश्वर के साथ ज्ञान मैं बेसुर देता हूँ, मैया आप करो कल्याण।
रखी औलाद गोली लाल लाल मेरी रखी औलाद गोली 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 लाल मेरी आवाज थोड़ी बड़ी टॉप पे मेरी रखी औलाद गोली लाल शिव शंकर के राज बुलावे बाबा राधी अख दे तारे बाबा राधी अख दे तारे पूरन कर दो राज राज मेरी रखी औलाद गोली लाल रखी औलाद गोली लाल रखी औलाद गोली लाल लाल मेरी रखी औलाद गोली लाल मेरी रखी औलाद गोली लाल लाल मेरी रखी औलाद गोली लाल रखी औलाद गोली लाल लाल मेरी रखी औलाद गोली लाल। जय मां सेवक सभा ਵੱਲੋਂ 21ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਾਗਰਣ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਨਿਊ ਸਿਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਐਂਡ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ शाहदिल ने आके माता जी का गुणगान करना है। हर साल की तरह इस साल भी पूरे महला वासी बाहर बैठ के माता रानी का गुणगान करके आनंदमयी वातावरण बनया हुआ है। जय माता दी। मैं अज सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई देना। अज आपां रल मिल के महामाई की कृपा के नाल 21वां वार्षिक जागरण न्यू सिला नगर दे विच मना रहे हैं। इस करके मैं सारे मैंबर सभान सारे महल्ले निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हाँ। जय माता। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण सभा मॉडल हाउस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की और उनके समर्पण, बलिदान और धर्म की रक्षा के कार्यों को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने श्रद्धा भाव से आहुतियां डाली। इस अवसर पर प्रोफेसर सोमनाथ ने भगवान परशुराम जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के तौर पर कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा, दीपक बाली, मोहिंदर भगत, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, आरएसएस प्रचारक प्रमोद कुमार, चंद्रभान पार्षद सुनीता टिक्का, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सुरेंद्र कौर शामिल रही। सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए ब्राह्मण सभा द्वारा उन्हें मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। सभी उपस्थित लोग भगवान परशुराम जी की पूजा में श्रद्धा भाव से शामिल हुए और इस पवित्र अवसर पर एकजुट होकर एक दूसरे के साथ धर्म, संस्कार और संस्कृति के महत्व को साझा किया। इस अवसर पर दिनेश शर्मा, अनीता शर्मा, जतेंद्र शर्मा, राजन, ललित, लखनपाल, विकास, राजीव शर्मा, देवेंद्र शर्मा, हेमंत शर्मा, प्रभात चौधरी, विक्रम सतपाल, विनय, दीपक और सुरेंद्र सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज उस महान पुण्य आत्मा जिन्हों का अज असीं दिहाड़ा बना रहे हैं, श्री परशुराम जी, उन्होंने तकरीबन प्रचारक साहब बोलते सन और अगों भी जिन्होंने बोलना कि उन्होंने किए हुए महान कार्य इस समाज लिए, इस हिंदुत्व लिए, उन्होंने असीं याद करते। बहुत वधिया गल है जदों तक असीं अपने पूर्वजां दे कीते हुए कामां नूं याद नहीं करांगे, उन्हां दी देन जिहड़ी समाज दे विच है उन्होंने याद नहीं करांगे, साडे जो उत्थान नहीं आएगा। और उत्थान बहुत जरूरी है। मैं एक होर गल कहना हुंदा, जरूरी है भी कि ठीक है उन्होंने जो करना सी उन्होंने कर दिया, वारी हुण साडी कि असीं की करना। तुसीं देखदे हो समाज दे विच प्रचारक साहब कह रहे थे कि मलशाला खोलनी चाहिए है। असीं छोटी तैयारी तो लगे हैं, लेकिन असीं वीडियो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किदां गन लैके दूसरिया कौमां के दूसरे देशों के जिहड़े साडे दुश्मन देश साडे सराहने बैठे सानू डिस्टर्ब कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी की जयंती की आप सभी को लाख लाख बधाई। अपने महापुरुषों को हम बार बार याद करते हैं, नित्य प्रति याद करने का प्रयास करते हैं, तो उसका एकमात्र कारण ये है
कि उनको याद करने से उनके अंदर जो गुण थे वो हमारे अंदर भी आए, इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो आज इस बात की महती जरूरत है कि भगवान परशुराम जी ने अपने जीवन में जो काम किए, आज अपने समाज को वो उन कामों के लिए प्रेरित करना सबसे आवश्यक काम लगता है। पहली बात तो ये, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। वो अगर सीखना हो तो भगवान परशुराम जी से सीखो। ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉਤਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ मर्द के बराबर। भगवान परशुराम जी की जो अक्षय तृतीया को उनका जन्म दिवस है, पूरा भारत ही नहीं, पूरा सनातन पूरे विश्व के अंदर मनाता है। परशुराम जी का जिस तरह का एक जीवन रहा, ऐसा ब्रह्म तेज और छात्र तेज, ये दोनों मिलाकर के उनका जीवन था। उन्होंने निरंकुश राजाओं को समाप्त करके एक सुशासन की स्थापना की। ऐसे भगवान परशुराम जी की जयंती हम सब मना रहे हैं। परम गौभक्त, परम गौरक्ष, माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले ऐसे भगवान परशुराम जी की जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय परशुराम। परशुराम जयंती है और उससे पहले जो कार्यक्रम चल रहे हैं जयंती से पहले, सो मैं विशेष तौर पे मेरे को निमंत्रण मिला था दिनेश शर्मा जी द्वारा, तो जय भगवान परशुराम जी के कहता हुआ, क्योंकि परशुराम जी ने हमेशा उनके बारे में कहा जाता है कि जुल्म के खिलाफ उन्होंने जो शस्त्र को धारण किया था। और आज भी हालात ऐसे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, और जो अभी कश्मीर का वाक़या है, तो ऐसे जुल्म करने वाले तब भी थे, हर एक युग में रहे। तो सबको इकट्ठा होकर आज परशुराम जयंती को सही तौर पे मनाने का मतलब ये है कि हर समाज को इकट्ठा होने पड़ेगा। ख़ास तौर पे ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी रहा है, और मैं कह सकता हूँ आज तक जो सनातन को जिंदा रखा, नहीं तो आपने देखा है कि जो सनातन को ख़त्म करना चाहते थे। सनातन का मतलब है मानवता, शुद्ध मानवता। एक सनातन धर्म ऐसा है सिर्फ वो मानवता की बात करता है। तो आज जो देश के आक्रांता रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, और इसको जिंदा रखने के लिए ब्राह्मण समाज को बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं आज तक। आप देखिए, जो सारा ताना बाना बुना गया है वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ इसलिए बुना गया था क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सर्वधर्म की बात करता था, वो सबकी इज्जत करता था। तो मैं एक ही बात कहूँगा, मैं सबको यहाँ बहुत बहुत आज इस शुभ दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ सारा जलंधर के ब्राह्मण समाज का, पे इन्होंने इकट्ठा होके उनकी जो हमारी जो परंपरा रही है जुल्म के खिलाफ, उसको जिंदा रखा है। और आने वाला टाइम भी है, हम सब इकट्ठे होके परशुराम जी द्वारा स्थापित मानदंड जो है जुल्म के खिलाफ, उसके लिए काम करते रहेंगे। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत दिन की सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। पूर्व सीपीएस एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष केडी भंडारी के बड़े भाई विजय कुमार भंडारी की धर्मपत्नी मंजू भंडारी 16 अप्रैल को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर पुरानी जेल रोड जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर
पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय मंजू भंडारी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, मेयर विनीत धीर, पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू, पूर्व मेयर राकेश राठौर, पूर्व विधायक शीतल अंग्रवाल, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, अविनाश राय खन्ना, सरबजीत सिंह मक्कड़, आप युवा सीनियर नेता रॉबिन सापला, अमरजीत सिंह अमरी, रंजीत आर्य, भगवंत प्रभाकर, राजीव ढींगरा, सुशील कुमार, रमन पब्बी, गुरचरण सिंह, आत्म प्रकाश बबलू, श्वेता धीर, बीना शर्मा, रानी सरीन, प्रदीप पुजारी, बिल्लू चड्डा, मनोज अग्रवाल, जिमी कालिया, सुखविंदर बुग्गा, अश्वनी अग्रवाल बिल्ला, मास्टर हरिचंद, दीपक बाली, एलपीयू से रमेश मित्तल, नरेश मित्तल, अनिल जोशी, सांपला, जगबीर बराड़ और पारिवारिक सदस्यों में अमित भंडारी, सोनिया भंडारी, मोहित भंडारी, पूनम भंडारी, रोहित भंडारी, नेहा भंडारी, AR भंडारी, मधु भंडारी, नीना भंडारी, हीरालाल भंडारी, उमा भंडारी, प्रियांश, तुषार, गुणवंश, आरव, एडवोकेट अवंतिका, अनुष्का सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मंजू भंडारी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जय जय राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बार बार जन्म तोता लेता है और बार बार मर जाता है, जब सिर पर संकट आता है तब राम राम चिल्लाता है। सुख में भजता, दुख में याद करके सुख यार ने सारे मतलब दे वेले सिर ना काम कोई आम दा आवे, गैरां नूं एवें क्यों दोष दईए कि साया अपना जदों भाजे जांदा वे। दुख विच तां उसे दा सिमरन कर दे ते सुख विच ना कदे ध्यान दावे, जे सुख विच भी उस नूं याद करिए ते दुख विच साथी बने जांदा वे। सुख में भजे ता क्यों नहीं राम रे, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो। एक कहावत है कि दुख वड्डिया घटदा, सुख वड्डिया वधदा। जिस ढंग दे नाल तुसीं अज इस परिवार दे नाल मोटे नाल मोटा लग खड़े हो, मैं परमात्मा को अपने कोलों बड़ा सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैं एक शब्द अपनी भैन मंजू के बारे जरूर कहूँगा, क्योंकि नीना साड़ी छोटी सिस्टर इस परिवार में रही है, लेकिन मंजू भैन जी ने कभी भी महसूस नहीं होने दिता कि असं नीना के भरा है कि मंजू के भरा है। सो इस ढंग उन्होंने व्यवहार जो सीगा वो जग जाए। मैं किसी के घर इसका हाथ पूछन गया तो एक शब्द ने मैनू इन्ना मान महसूस करवाया। जो मैं बच्चे को हाथ पूछा तो मैं कहा कि मंजू भाभी के अखबार में लगा कि असं अपनी मां खोती। सो ये प्यार जो मंजू जी ने अपने जीवन में कमाया, ये बहुत बड़ी गल है। तो अज जो इतने लोग आए ने, जिन्हें भी आए ने, अलग अलग जगह घूमने शो करता कि उन्होंने प्यार के सरकार के नाश है। सो तुम सारे चल गए, मैं अपने को बहुत बहुत धन्यवाद करता। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोगा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में हुई भीषण टक्कर, एक युवक हुआ गंभीर घायल। नाभा में गेहूं के खेतों में लगी आग, 16 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख।
नशा तस्करी के हॉटस्पॉट गांव लखनपाल में नशा तस्करों के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। पिता और दोनों बेटों पर 13 केस दर्ज। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हर जगह।